اور بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے نومنتخب اراکین سے حلف لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے بھی حلف اٹھایا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی شور شرابہ کرنے والوں کو باہر نکالنے کی وارننگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راجہ پرویز اشرف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی، ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کے تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد۔ مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب نے مہمانوں کی گیلری میں بیٹھ کر قومی اسمبلی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ آصفہ بھٹو بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود تھیں، جی اے بھٹو کے نعرے لگواتی رہیں۔ آزاد اراکین کے نعروں کے جواب میں مریم اورنگزیب بھی جوش میں آ گئیں اور نعرے لگوانا شروع ہو گئیں۔ تصویر بھی بنا لینا جناب۔ نواز شریف کی اسمبلی آمد پر ایوان شیر آیا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نواز شریف حکومتی بینچوں میں سب سے پہلی سیٹ پر براجمان ہوئے، ساتھ شہباز شریف، پھر خواجہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بیٹھے تھے۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کو پہلی لائن کی سیٹیں الاٹ کی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، اختر مینگل آزاد اراکین کے 7 والی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، گپ شپ بھی کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے محمود اچکزئی، اختر مینگل سمیت دیگر اراکین کی سیٹوں پر جا کر مصافحہ کیا۔ پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی ہے، کوئی محب وطن شہری ایسا خط نہیں لکھ سکتا۔ ملک دشمن اقدامات پی ٹی آئی کا وتیرہ بن گئے ہیں۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا سخت رد عمل، آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی شدید مذمت کی۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف پروگرام سبوتاژ کرنے کے لیے خط لکھا۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے خدا نخواستہ ڈیفالٹ اور پاکستان برباد ہو جائے۔ سائپر کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھنا پاکستان سے دشمنی ہے۔ یہ صاحب آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھا ہے خان صاحب نے، اس لیٹر سے متعلق کیا کہیں گے سر؟ ایک منٹ پاکستان کے جو فنڈز ہیں جو سے نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس کو نہ کیا جائے اور الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے۔ سائفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت ہے، اس کے بعد کسی کو کوئی ریاضی یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان مکمل تباہی کا شکار ہو جائے۔ افسوسناک ان کا دام ہے، جس کتنی بھی حکومت کی رہتا ہے کوئی پاکستانی چاہے اس کے اپنی وہ ملک کے لیے دعا نہیں کرتا۔
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब का कहना है कि PDM हुकूमत चूचू का मुरब्बा है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान को मुश्किलात से हमारी पार्टी ही निकाल सकती है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पार्लियामेंट में अवाम के मैंडेट पर आना चाहिए, किसी का मैंडेट चोरी करके नहीं। इस बार 5th जनरेशन वाली धांधली हुई है। दरताज गुल बोली कि हमारे साथ जुल्म या जबर नहीं, दुश्मनी की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन सेनेट ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बतौर रुकन कौमी असम्बली आज हलफ उठाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और चेयरमैन सेनेट ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये भी आपको बताते चलें कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बतौर रुकन कौमी असम्बली आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जिन्होंने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है और चेयरमैन सेनेट ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इस बारे में और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बतौर रुकन कौमी असम्बली आज हलफ उठाने जा रहे हैं और सेनेट की नशिस्त से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। स्पीकर के लिए नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई और डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली गजाला गोला ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस बारे में डिटेल्स लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाजई इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद हनीफ, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इंजीनियर जमर खान अचकजई ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया है, जिसमें आज जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। ताहम अब तक जो है पीपल्स पार्टी के जो MPA है गजाला गोला ने अब तक जो है डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कागजात नामजदगी जो है 12 बजे तक जमा किए जाएंगे। उसके बाद 1 बजे तक जो है जाँच पड़ताल होगी। उसके बाद जो है 3 बजे असम्बली में जो है खुफिया राय शुमारी से जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। ताहम अब तक जो है मुस्लिम लीग नून ने जो है वो स्पीकर के लिए कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई का नाम जो है वो नॉमिनेट किया है और इसी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी ने अब तक कोई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नाम जो है वो इंतखाब नहीं किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हनीफ। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। स्पीकर के ओहदे के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती और अपोजिशन के एहसानुल्लाह मियां खेल में मुकाबला जारी है, जबकि डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम मद्दे मुकाबिल हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अहम खबर आपको देंगे। रावलपिंडी के अडियाला जेल में कैदियों के दरमियान झगड़ा हुआ और एक कैदी को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल एजाज रबानी और ज़ख्मी कैदी के झगड़े से मुताल्लिक़ तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। इस वाक़े के बारे में मज़ीद तफसीलात भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी के अडियाला जेल में कैदियों के दरमियान झगड़ा हुआ है, एक कैदी को कत्ल कर दिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक मकतूल एजाज रबानी है और ज़ख्मी कैदी के झगड़े से मुताल्लिक़ पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है। तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये झगड़ा हुआ है 2 कैदियों के माबैन रावलपिंडी की अडियाला जेल में, जहाँ पर 2 कैदियों के दरमियान जब झगड़ा हुआ तो एक कैदी को कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरा कैदी ज़ख्मी बताया जा रहा है। और अब इस वाक़े की जानिब से पुलिस जो है शवाहिद इकट्ठे कर रही है। तहकीकात का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा दिया गया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर 2 कैदी थे जिनके दरमियान ये झगड़ा हुआ जेल के अंदर और एक कैदी कत्ल हो चुका है, जबकि दूसरे कैदी के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और पुलिस जो है इस वाक़े से मुताल्लिक़ तहकीकात कर रही है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि झगड़ा जो है वो किस बुनियाद पे हुआ। खालिद चौधरी इस वाक़े के बारे में मज़ीद डिटेल्स हमें देंगे। खालिद, ये क्या मामला है? पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात क्या की हैं? जी, अडियाला जेल में कैदियों में आपस में झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि आपस में किसी बात पर तर्क कलामी हुई, जो इस शिद्दत के साथ ये मामला बढ़ गया था। इस दौरान जो है कुछ दीगर कैदियों ने इन्हें छुड़ाने की भी कोशिश की, ताहम एक शदीद कारी ज़र्ब की वजह से एक कैदी एजाज रबानी जो है वो मौका पर ही। तो जेल के अंदर खालिद कारी ज़र्ब कोई हथियार इस्तेमाल किया गया है? किस तरह से मुमकिन हुआ ये? जो ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक जो दीवार थी, दीवार के साथ जो लोहे का आहनी गेट लगा हुआ था उसके साथ सर टकराया था, जिसके नतीजे में जो है ये मौत वाक़ई हुई है। जिसके बाद जो है मकतूल को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था और जख्मी के झगड़े के बारे में तफसीलात भी पुलिस इकट्ठी कर रही है। मकतूल की लाश को कुछ देर कबल जो है पिम्स से DHQ अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो है तमाम सूरत हाल वाज़ेह होगी। जी।
अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद। शेखुपुरा में हाफिजाबाद रोड पर कार नहर में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इमदादी टीमों ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। 1 लाश भी निकाल ली गई है, जबकि 2 लाशों की तलाश इस वक्त जारी है। इस वाक़े से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात अली इमरान हमें देंगे। जी अली। जी वजिया, बिल्कुल ये अलमनाक हादसा जो है ये मोटरवे पर गांव मदार के करीब हाफिजाबाद रोड पर पेश आया, जहां नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो तेज रफ्तार कार जो है वो नहर में जा गिरी। इस अफसोसनाक हादसे में के नतीजा में जो है वो 3 अफराद जो है वो कार सवार मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू टीमों ने जो है वो जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक होने वालों में से 1 की लाश जो है वो लैब से निकाल ली गई है, जबकि 2 लाशों की तलाश के लिए जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। अभी खबर देंगे आपको कराची से। कराची के इलाके शालतीफ सालेह मोहम्मद गोट नदी के करीब फायरिंग से 3 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। जाँ बहक होने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात कराची से हमारे नुमाइंदे उबैद शाह में देंगे। जी उबैद। जी बिल्कुल, जिला मलीर का ये इलाका है, थाना शाह लतीफ की हदूद है। सालेह मोहम्मद गोट नदी के करीब फायरिंग से 2 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि इसी थाने की हदूद लाशारी गोट से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। SHO शाह लतीफ पार्टी के हमरा जाय वक़्वा पर मौजूद हैं। SSP मलीर का कहना है कि लाशारी गोट से जिस शख्स की लाश मिली है उसके पास से नशे का सामान बरामद हुआ है, जिससे लगता है कि वो नशे का आदी है। जबकि सालेह मोहम्मद गोट से जो 2 अफराद मिले हैं उनकी शनाख्त लाड़ू और के नाम से कर ली गई है, जबकि एक और शख्स जिसकी लाशारी गोट से लाश मिली थी उसकी शनाख्त हबीबुल्लाह के नाम से की गई है। SSP मलिक का कहना है कि 2 अफराद जो सालेह गोट में जिनकी लाशें मिली हैं, कभी इम्कान है कि ये किसी मंशात में मुलविस थे और किसी तनाज़े पर आपस में एक दूसरे को उन्होंने गोली मारी है। पुलिस वक़्त से खोल बरामद कर लिए हैं, मजीद फॉरेंसिक जांच भी जारी है। जबकि शाह लतीफ के जो दूसरा इलाका है लाशारी गोट, वहाँ से जो शख्स की लाश मिली है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि बाग कच्चा बंद के पास इन 2 अफराद की डेड बॉडी मिली थी और लाश को देख के अंदाजा होता है कि इनको एक दूसरे को कत्ल किए हुए काफी वक्त गुजर चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उबैद। इस वाक़े के बारे में तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरखास्त को खारिज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के नाकाबिल समाअत होने का एतराज़ आयद किया था। इस बारे में उमर हयात हमें मजीद अपडेट करेंगे। उमर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने नाकाम उम्मीदवार अली इजाज की दरख्वास्त पर समाअत की और ये दरख्वास्त बतौर एतराज़ केस अदालत के रूबरू समाअत के लिए पेश की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया था कि इलेक्शन कमीशन से पहले रिव्यू किया जाए, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर की जाए। जबकि फाजिल जज ने भी दौरान समाअत ये रिमार्क्स किए थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन एतराज़ात हैं उनकी समाअत के लिए जो एपलेट ट्रिब्यूनल है वो तश्कील देने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, तो आप जो एपलेट ट्रिब्यूनल हैं उनके रूबरू ये दरख्वास्त जो है वो दायर करें। अदालत ने इस दरख्वास्त पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ था उसको बरकरार रखा और दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। लेकिन NA 117 से नाकाम उम्मीदवार जो है उनका कहना था, अपनी दरख्वास्त में कहना था कि फॉर्म 45 के तहत वो कामयाब करार पाते हैं, लेकिन ARO ने गैर कानूनी तौर पर फॉर्म 47 जारी करके उसको नाकाम किया। जबकि उनका ये कहना था कि अदालत जो है वो फॉर्म 45 के तहत नतीजा जो है वो। बहुत शुक्रिया उमर, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक अच्छी खबर है, एक और ट्रैफिक वार्डन डॉक्टर बन गया है। एक और ट्रैफिक वार्डन ने दौरान मुलाजमत PhD की डिग्री मुकम्मल कर ली। ट्रैफिक वार्डन हबीबुर रहमान ने पंजाब यूनिवर्सिटी से साउथ एशियन स्टडीज़ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर हबीबुर रहमान ने पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के उन्वान पर तहकीकी और तनकीदी मकाला लिखा है।
इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर आपको मनासिर दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा कर रही हैं। उन्होंने विजिट किया और तमाम तर जो काम है उसका उन्होंने जायजा लिया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग दी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को। ये विजुअल न्यू की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कि रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा कर रही हैं। मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा हैं और साथ में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उनको ब्रीफिंग दी तमाम तर अमूर के हवाले से। आप देख सकते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कि तरक्याती कामों का जायजा ले रही हैं और इसी तरह से यहाँ पर मौजूद है रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जिनके हमरा मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आज वज़ीर आला पंजाब को इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी और विजिट भी किया गया मरियम नवाज की जानिब से। अभी मरियम नवाज यहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा इन तमाम तर कामों का, तरक्याती मंसूबों का विजिट किया जाएगा और मरियम नवाज को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कि इस रिंग रोड रावलपिंडी का दौरा कर रही हैं, इस मौके पर मौजूद हैं। उनके हमरा मरियम औरंगजेब भी आपको नजर आ रही हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आज मरियम नवाज को इस मौके पर ब्रीफिंग दी तमाम तर तरक्याती अमूर के हवाले से, कामों के हवाले से मरियम नवाज जायजा ले रही हैं और आज उनका ये जो दौरा है आप देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रिंग रोड रावलपिंडी का ये दौरा कर रही हैं और उनके यहाँ पर उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी। इससे पहले कौमी असम्बली में मौजूद थी मरियम नवाज और कौमी असम्बली इजलास के बाद अब उनके जो दौरा है यकीनन ये एक तरक्याती जो मंसूबा है उसका विजिट कर रही हैं। तमाम तर जायज़ा लिया जाएगा कामों का कि क्या पेशरफ्त है, किस तरह से तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाया जा रहा है आवाम को रिलीफ देने के लिए। और अभी मरियम नवाज को इससे पहले ब्रीफ भी किया गया था, अभी यहाँ पर वो मौजूद हैं। मज़ीद जो तरक्याती काम है इस हवाले से उनका जायज़ा लेंगे और उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उनको ब्रीफ किया तमाम तर अमूर के हवाले से। ये जो मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त रिंग रोड रावलपिंडी का विजिट कर रही हैं और दौरे के हवाले से मरियम नवाज भी उनके हमरा हैं और तमाम तर कामों का जायजा ले रही हैं। Different kind of machines on this entire length of 38.3 kilometers. मैं as per direction of our leadership, we have been tasked to complete this road by end of this year, inshallah. And end of this year, inshallah. And the work on roadway will be completed by end of this year, and few ancillary works like fencing. So this says the completion date 20th, 29, 25. Yes, ma'am. As per contract agreement, it is September 25, but we are trying to complete it. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक और गजाला गोला के अलावा ताहाल किसी मेंबर ने कागजात नामजदगी वसूल और जमा नहीं कराए हैं। जमा शुदा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक की बतौर स्पीकर और गजाला गोला को बतौर डिप्टी स्पीकर कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर की नाक़िस कारकर्दगी सामने आ गई है। फ़न तामीर के शाहकार मस्जिद वज़ीर खान वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के अफसरान के मुजरिमाना गफलत का शिकार हो गई। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ताहाल मस्जिद में पानी का रिसाव रोकने में नाकाम हो गई है। इस बारे में इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद क्या किया जा रहा है, किसकी नाअहली है, गफलत है, इदरीस शेख की हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। इदरीस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का शाहकार मनसूबा है तारीखी फन तामीर का शाहकार मस्जिद वजीर खान, और इससे मुतालिक DGME की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात वाज़ेह हुई कि फन तामीर का शाहकार जो मस्जिद वजीर खान है वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के अफसरान की मुजरमाना गफलत का शिकार हो गई है। सिलसिले में ताहाल मस्जिद में रस्ते पानी रुका नहीं जा सका, जबकि इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चलने वाला मरम्मत और बहाली का काम भी जो है इसकी वजह से की रकम को दाव पर लगा दिया गया। मरम्मत और बहाली का ये मनसूबा 23 अप्रैल 2022 को मुकम्मल होना था, ताहाल ये नामुकम्मल है और वॉल सिटी अथॉरिटी के बर वक्त काम मुकम्मल ना करने की वजह से इस सिलसिले में ये मनसूबा सुस्त रवैये का शिकार है। ना तो हराजी का असूल मुमकिन हो सकता है, मनसूबे के तहत फर्नीचर और दीगर सामान खरीदा जा सके। 1.5 करोड़ रुपए की रकम सर्वे के लिए जारी की गई थी, मगर गफलत का शिकार वॉल सिटी अथॉरिटी के अफसरान कोई भी सर्वे नहीं कर सके। 24 अप्रैल 2017 को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इदरीस।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन 3,260 तलबा और तालबात को डिग्रियां दी गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है कि वो मुल्क पीछे नहीं जा सकता जिसके पास नौजवानों की ताकत है। कामयाब तलबा आगे चलकर मुल्क व कौम की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी दुनिया भर में काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटी के तौर पर पहचानी जाती है, जिस पर उनको फ़ख्र है। डियर स्टूडेंट्स, वो मुल्क कभी पीछे नहीं जा सकता जिसके पास नौजवानों की ताकत है। ऐसे नौजवानों की ताकत है जिनके पास नई सोच है, जिनके पास नया जज्बा है, जिनके पास मेहनत है, जिनके पास लगन है। आपको वादा करना होगा कि आप अपने वालिदैन के सर फख्र से बुलंद करेंगे। आपको वादा करना होगा कि आप अपने मादरे इल्मी सुपीरियर यूनिवर्सिटी का झंडा और बुलंद करें। अगर हम ये किरदार अपनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज मुसलमान पूरी दुनिया में। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मेयर कराची ने मुतल्लिका महकमों को एक दिन पहले हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है, ताहम अभी तक नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हो सका है। इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में हमें मजीद अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद। कराची में 1 मार्च से जो है वो दरमियान से तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है। महकमा मौसमियात कहना है कि 1 मार्च से शुरू होने वाली बारिशें जो है वो 2 मार्च की रात तक जारी रहेंगी और ये जो है बहुत तेज़ बारिशें भी मुतवक्का हैं। ये कहना है महकमा मौसमियात का, जिसके तहत जो है मेयर कराची ने भी जो है वो हाई अलर्ट जो है मुतल्लिका महकमों को जारी किया है और अमले की छुट्टियाँ भी मनसूख की हैं और ये कहा है कि अपने जो इंतज़ामात हैं उन्हें जो है मुकम्मल करें और नालों की सफाई करें। और ये जो इन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है ये एक दिन पहले किया है। तो जो यहाँ के मकीन हैं उनका यही कहना है कि जब बारिशें होती हैं तो नाले का तमाम पानी जो सोल्जर बाज़ार का नाला है, जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको ये दिखाएगा इस वक्त इसकी क्या हालत है, तो मकीनों का ये कहना है कि कचरे से भरा होता है। जब बारिशें होती हैं तो ये तमाम पानी हमारे घरों में आता है और ये नापाक पानी होता है जिससे हमारे घर गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सामान ख़राब हो जाता है। मगर इस नाले के जो है वो सफाई के लिए कोई अमला इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मकीन का यही कहना है कि हर दफ़ा का यही रोना है, बारिशें होती हैं और सोल्जर बाज़ार का जो नाले का गंदा पानी है वो कचरा समेत इनके घरों में दाखिल हो जाता है और कोई पुरसानी हाल नहीं होता यहाँ का और हमें बहुत मुश्किलात का सामना होता है। और कल से फिर बारिशें हैं और मकीन जो है बहुत परेशान है और मकीनों का यही सोचना है कि कल जब कराची में तेज़ बारिशें होंगी तो हमारा क्या होगा। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कौमी असेंबली गैलरी में आसफा भुट्टो से मुलाकात हुई। मरियम नवाज़ और आसफा भुट्टो के दरमियान खुशगवार मूड में तबादला ख्याल हुआ। आसफा भुट्टो ने मरियम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। आपको अहम खबर दें, आसफा भुट्टो और मरियम नवाज़ के दरमियान कौमी असेंबली गैलरी में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात के मनाज़िर न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। और दोनों चेहरे पर खुशगवार तासुरात लेते हुए आगे बढ़ी, एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे से मुसाफा किया। आसफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ आज आप देख सकते हैं ये कौमी असेंबली की गैलरी है जहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई, इंतहाई खुशगवार तासुरात चेहरे पर लिए हुए और मरियम नवाज़ और आसफा भुट्टो के दरमियान खुशगवार मूड में तबादला ख्याल भी किया गया। आसिफा भुट्टो ने मरियम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। आसिफा भुट्टो जो कि सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्शन कैंपेन्स थी, उनमें भी पेश नजर आई हमें सिंध के अंदर, कराची में भी और आज कौमी असेंबली में भी आसफा भुट्टो जरदारी मौजूद थी। और मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर गैलरी में मौजूद आसफा भुट्टो ने उनसे मुलाकात की और उनको खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत ने अवामी खिदमत का आगाज़ कर दिया है। रवा साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों में खुश राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। राशन की तकसीम के लिए तरीक़ाकार भी मुरतब कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल वहाब शाहिद की इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब भर में मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम करने की तैयारियां जारी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को घर की दहलीज पर 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन पहुंचाया जाएगा। पोलियो और रेवेन्यू टीमों की मदद से राशन बैग्स की तकसीम की जाएगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों का डाटा फ्राहम करेगा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 4,81,000 रजिस्टर्ड घरानों की
जांच पड़ताल के बाद तस्दीक हुई तो 23,000 लोग मुस्तहिक करार ना पाए। बाकी 4,58,000 से ज्यादा घरानों की दोबारा से तस्दीक की जाएगी। लाहौर डिवीजन में 10,10,146 घरानों का डाटा फराहम किया गया है। अवाम का कहना था कि रमजान बाजार से हर तबका रिलीफ हासिल कर लेता था, अब तो गरीब तबके को महंगे दामों अशिया खरीदनी पड़ेंगी। बाजार ये लगने की वजह से ना बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। बाकायदा पैसे देने की बजाय ये बाजार इनको लाजमन लगाना चाहिए, क्योंकि वो सस्ती चीज़ हम गरीबों को मिल जाती है। आप नहीं लगा रहे तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती है ना। पहले हमें कौन सा राशन घर में बजाया है। रमज़ान बाजार जी लगवाना चाहिए ताकि चलो सब फ़ायदा उठा लें जो कुछ भी है। जिन घरानों का राब्ता नंबर या एड्रेस दस्तयाब नहीं, उनकी तस्दीक शनाख्ती कार्ड नंबर या मैनुअल तरीके से की जाएगी। तस्दीक के बाद मुस्तहिक घरानों तक राशन बैग की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक एक राशन बैग की कीमत 3500 रुपए के करीब बताई जा रही है। लाहौर शहर में फराहम किए जाने वाले डाटा के मुताबिक 2 अरब से जायद के राशन बैग लाहौर में तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन जमशेद के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, नियो न्यूज़, लाहौर। दालें दुनिया भर की तरह पाकिस्तानियों की खुराक का एक अहम हिस्सा हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक तमाम दालों के मुकाबले में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा दाल माश खाना पसंद करते हैं। सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। सबसे ज्यादा पसंदीदा दाल कौन सी है? माश, चना, मसूर, मूंग या अरहर की दाल? गैलप सर्वे के मुताबिक 21% अफराद ने माश की दाल के हक में फैसला सुना दिया। 17% पाकिस्तानियों ने चने की दाल को पसंदीदा करार दिया। 14% ने दाल मूंग और 8% ने मसूर की दाल को चुना, जबकि 4% ने लोबिया को पसंदीदा करार दिया। मेरी पसंदीदा दाल जो है वो चने की हैगी, और अगर वो फ्राई होती है ना उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं हरी मिर्चें और धनिया वनिया ये डाला हुआ होता है और उसके ऊपर तड़का लगता है तो उसमें ज़रा अच्छी तरीके से लगती है। शहरियों ने जहां दाल माश को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहा, वहीं दालों की बढ़ती कीमतों का भी शिकवा कर दिया। शहरियों का कहना था अरहर की दाल पसंद है, मगर 740 रुपए किलो की दाल कौन खरीदे? दालों के अंदर विटामिन है, लेकिन हमारे यहाँ इतना केमिकल इस्तेमाल कर दिया है खेती बाड़ी के अंदर कि हर चीज़ का असर उड़ गया है। अब यह कि बस पेट भरने के लिए समझ ले घास फूस खा रहे हैं, टेस्ट खत्म है। वो मुझे उम्मीद है नई हुकूमत कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, उम्मीद है। इसी उम्मीद पे ये लोग कुछ इन्होंने अपना एका किया है, और सदर साहब से तो बड़ी उम्मीद है, और बिलावल बच्चा भी माशाल्लाह बड़ा जोश में शायद कुछ कर दे। सर्वे में 6% ने सब दालों को पसंदीदा कहा। अलबत्ता 4% अफराद ऐसे भी नजर आए जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी दाल पसंद नहीं। कैमरामैन नुमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यो न्यूज़, कराची। कराची के निजी जामियात के तलबा ने थेरेपिस्ट के बगैर एक्सरसाइज मशीन और दिल की बरकी हरकत की खराबी को जांचने वाली मशीन तैयार कर ली है। तलबा कहते हैं कि अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो कम कीमत पर ये मशीनें तैयार करके लोगों की खिदमत की जा सकती है। मज़ीद तफसीलात शफ़क़त अजीज़ की रिपोर्ट में। कराची में तलबा का बड़ा कारनामा, दिल की बरकी हरकत में खराबी फौरी पकड़ने और फिजियोथेरापी की जदीद मशीन तैयार कर ली, जो आम शख्स भी बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। कराची की सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में नए रुझानात पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तलबा की जानिब से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के शोबे में मसनूई जहानत के इस्तेमाल से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए रखे गए। इस प्रोजेक्ट के जो हमने डिज़ाइन किया है, इसका ये एडवांटेज है कि आप घर पे इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट से उसके जो मसल्स की सिग्नल्स होते हैं उसको लेता है और खुद आइडेंटिफाई करके ये भी बताता है कि कितनी एक्सरसाइज उसको नीड है। तो हमने बेसिकली प्रोजेक्ट ये बनाया है कि वो पेशेंट जो पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स हैं जो फालिज के थ्रू चले गए हैं और उनकी मसल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उनकी मसल मूवमेंट रिवाइव करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है जो रिहैबिलिटेशन करवाता है। जामिया इंतजामिया का कहना है कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी तलबा के प्रोजेक्ट को न सिर्फ हुकूमती सतह पर रोशनास कराएगी बल्कि सरमाया भी फराहम करेगी ताकि तिब के शोबे में बेहतरी आ सके। जो हमारे डॉक्टर हबीब, डॉक्टर इरम आफाक का जो विजन है वो ये विजन है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को बच्चों को आगे लाया जाए, सरकारी सतह पर उनको रिकग्नाइज़ कराया जाए और साथ में उनको पूरी सपोर्ट दी जाए कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्रोडक्ट की शक्ल में लेकर आएँ। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के शोबे में होने वाली नई इजादात और इस शोबे में होने वाली नई जिद्दत के बारे में तलबा को आगाह किया गया। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज के ऐलान में गैर मामूली ताख़ीर पर तहकीक़ात का इजहार सामने आया है। सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है, मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस ख़त में कि बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर उनको तशवीश है। NA 260 पर पार्टी उम्मीदवार के राब्ते के बावजूद इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। अहम खबर, पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज के ऐलान में गैर मामूली ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आमना जंजुआ मज़ीद इस की डिटेल्स बताएंगी। जी आमना।
جی دیکھیں پیپلز پارٹی کے مرکزی الیکشن سیل کے انچارج سینیٹر تاج حیدر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے. سینیٹر تاج حیدر نے اپنے خط میں بلوچستان کے انتخابی نتائج کے اعلان میں غیر معمولی تاخیر پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر پر ہمیں گہری تشویش ہے. این اے 260 پر پی پی امیدوار جنرل عبد القادر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے حکام سے بار بار رابطوں کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا گیا. بلوچستان ایک انتہائی حساس ادارہ ہے. اس خلافت میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ تاخیر الیکشن کمیشن ایکٹ کے صریحاً خلاف ورزی ہے جس سے سنگین خدشات اور افواہیں جنم لے رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جائز خدشات آپ کی فوری جو ہے وہ توجہ حاصل کریں گے آپ اور جو ہے وہ اس کو حل نکالیں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. اس بلیٹن سے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.